ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ so rest of the people that they can understand English so everyone should put the unmute yourself so that extra voice should not come so before starting let me introduce myself I'm Pastor Rajkumar from India and I am having the Living Word Christian Society organization in India. The main vision of this organization is to reach the unreached at any cost. There are trillions of people in India, those who don't know about the love of Jesus Christ. Our target is to bring millions people, those who don't know about Christ, bring them into the church and teach them and about the salvation and how to go to heaven and how to have a peace in their life. So this is my small introduction. Big introduction I will give to Sister Maria in another time. So because we don't want to waste our time. So let us pray together. Father, we worship you and we welcome you in this morning time as we have spent time with Sister Maria from Margunda, and I pray that you may use her mightily in this small meeting room, Lord. There are hundreds of people, thousands of people, millions of people don't know about the love of Jesus Christ, don't know about the inside of the word of God. And today this is a great day for us that she is there to preach the word of God with the power of the Holy Spirit. I pray that the blessing of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit be upon her, Lord Jesus. Use her mighty way, Lord. And I also pray for the other women of God and men of God, those are joining us with different countries, Lord. Hallelujah. I bless their family. I bless their church. I bless their ministry. And in the days to come, we would be having a strong leadership, strong fellowship together in the name of Jesus. Hallelujah. Bless her in the name of Jesus. Amen. Over to Sister Maria. Amen. Well, I do greet all of you in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. It is good to be with you. Time having moved on, I am going to do my utmost best to share the totality of that which God has given to me. Pastor Raj Kumar, thank you so much for reaching out halfway around the world to connect and share this moment. I pray God's blessings upon each of you as you continue the kingdom work where God has you planted. And with that in mind, I'm going to go directly to the teaching. Amen. And you can one sentence that Abhishek will translate. One sentence, then another. Yes, this is going to be interesting. One sentence. All right. बोलिए अभिषेक जी बोलिए जो कुछ बोले सिस्टर जी सो मैं प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ so this is going to be in Hindi or in Punjabi you can speak in Hindi you can speak so प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये अच्छा समय दिया कि मैं आप सभी के साथ प्रभु के वचनों में से बांट सकूं और उस खुशखबरी को जो उसने मुझे दी है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं पास्टर राजकुमार के लिए जो कि तकरीबन संसार के मध्य में से तकरीबन आधे रास्ते में से मुझे मिले हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए वो मेरा साथ दे रहे हैं ताकि इंडिया में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकें I want to speak from the topic, trust the treasure. तो आज का जो विषय जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वो है ट्रेजर खजाने पे विश्वास The scripture verse is 2 Corinthians 4:7 through 10. और आज का जो वचन का भाग लिया गया है प्रभु के कलाम में से वो है दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 से 10 आए It reads, but we have this treasure in earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us. Okay, so I'll read in
this in Hindi. So here it is written, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। Praise God. Verse 9, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Brothers and sisters, trust is a major issue in the world today. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास जो है वो आज के दिनों में संसार में बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। Who do you trust? आपको किस पे विश्वास है? I would encourage you to go beyond the world and trust God. और मैं आपको उत्साहित करती हूं कि आप लोग इस संसार से बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करें। Let's not say it only. Let's put our faith and full trust in God. हम सिर्फ इसको कहना ना शुरू करें बल्कि हम इसको करना शुरू करें कि हम सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Always remember, the world is trying to figure things out, and God is omniscient. और मैं बताना चाहती हूँ, हमेशा याद रखें कि संसार जो है हमेशा बातों को बताता है या बनाता है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को पूरा करने वाले हैं। And that's why we can trust God. और इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। आमीन। Pastors, the reason that you must put your full trust in God is because there are those who are depending on you to do the work. सो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है क्योंकि उसने हमें चुना है, हम पर निर्भर करता है ताकि हम लोग परमेश्वर का कार्य कर सकें। You are here to serve the body of Christ. हम लोग प्रभु यीशु मसीह की देह को उसके काम करने के लिए यहाँ पर हैं। Pastors, you are the messenger, the light in the house of God. प्रिय पासवान, आप लोग परमेश्वर के संदेशवाहक और एक ज्योति के समान हैं जो उसके घर में रहते हैं। Through you, the gospel message must be preached. आपके द्वारा ही जो सुसमाचार का प्रचार है उसको प्रचार किया जाना है। God has placed his word in you. परमेश्वर ने अपने शब्दों को आपके अंदर रखा है। That word must come forth and bless the body of Christ. ताकि उस शब्द को सामने लाया जाए और यीशु की मसीह की देह को आशीषित किया जाए। In our text, the Apostle Paul, the great evangelist of the New Testament, is speaking to the Corinthian church. और यहाँ पे जो भाग हमने वचन में से पढ़ा है उसमें देख सकते हैं कि एक महान सुसमाचार प्रचारक जो पौलुस हैं वो कुरिन्थियों के चर्च को बताते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। This church believes in stuff. और ये जो कलीसिया है ये कुछ चीजों में विश्वास रखते हैं। They value money. ये लोग
पैसों की अहमियत को जानते हैं, पैसों को अहमियत देते हैं. They were a flourishing church. Sorry, pardon please. They were a wealthy church. और ये लोग एक धनी कलीसिया हैं. They were located by the sea. और ये लोग एक समुद्र के तट के पास रहने वाले हैं. They were a major route of trade. और ये व्यापार की एक बड़ी जड़ के समान है. They were the mega city of their day. और उन दिनों में ये शहर जो है, ये लोग जो हैं एक बहुत बड़े शहर के तरह थे. Corinth was the center of idol worship. और जो कोरिन्थियों था वो मूर्ति पूजा का एक मध्य केंद्र बिंदु था. And the name of Corinth was attached to immorality. और जो नाम है, जो कोरिन्थियों नाम है, ये अनैतिक चीजों के समान है. It does not matter what Corinth is like. और इसका कोई भी मतलब नहीं है कि कोरिन्थियों किसके समान है. Because God placed a treasure in the apostle Paul to deliver to Corinth. क्योंकि परमेश्वर ने अपने धन को प्रेरित पौलुस में भर रखा है ताकि वो उसके द्वारा कोरिन्थियों का छुटकारा करवा सके. Now hear me, pastors. और आप मुझे बड़े ध्यान से सुने पासवान. The same treasure that was in the apostle Paul is in you. वही धन जो प्रेरित पौलुस में समाया हुआ था, वही धन प्रभु ने आप में भी समाया है. And so I quickly want to teach from 3 points. और मैं जल्द से आपको 3 बातों को सिखाना चाहती हूँ. Number 1, earthen. सबसे पहली मिट्टी के बर्तन. Number 2, excellence. दूसरी बात है जो वो है सिद्धता. Number 3, exhibit. तीसरी बात है अपने आप को प्रदर्शित करना. So let's deal with number 1, earthen. So आइए हम पहली बात के साथ कुछ विचारों को करेंगे. I will read verse 7 again. और मैं आपके लिए 7 आयत को फिर से पढ़ता हूँ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. तो यहाँ पर लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. I want you to note that verse 7 begins with the word but. तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर जो 7वीं आयत शुरू होती है वो परंतु शब्द के साथ शुरू होती है. That means that we've got to go back and understand what's going on. So इसका मतलब यह है कि हमें पहले वापस जाना होगा और पहले उसके बारे में समझना होगा कि इससे पहले क्या हो रहा है. So let's go to verse 6. Let's go back. So आइए हम पिछली आयत में चलते हैं, 6 आयत में. It reads, for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो. Pastors, this is amazing. और ये अद्भुत है. God Almighty, who is creator, who called light out of darkness, has shined that light in your heart.
सो ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने उस ज्योति को अंधेरे में चमकाया और बल्कि उस ज्योति को हमारे हृदयों में रखा है। In other words, when you operate in truth, सो हमारे शब्दों में अगर हम कहें, यदि हम सत्य को करना शुरू करें, God's truth, the same power of light that God called out of darkness at creation is in you. तो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई का हिस्सा हमें सामर्थ्य देता है, वही सामर्थ्य जिसके द्वारा परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति को बुलाया और सृष्टि की, और उसी ज्योति को परमेश्वर सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर भर देते हैं। The light is in you. तो ज्योति है वो हम में है। Exposing light is in you. जो ज्योति को हमें दिखाना है वो हमारे अंदर ही है। Revealing light is in you. और उस ज्योति को जिसे प्रकट करना है वो हमारे अंदर ही है। This is all powerful light. और ये एक सामर्थ्य भरी रोशनी है। Now, what is amazing is that God's creative light, He has trusted in earthen vessels. और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने जो ज्योति को बनाया है, ज्योति की सृष्टि की है, उसको परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों में भर रखा है। How can we who fail and fall have such power in us? सो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग जो हम अक्सर हार जाते हैं, अक्सर गिर जाते हैं, ऐसी सामर्थ्य को इस्तेमाल कर सकें, अपने अंदर रख सकें? This is why verse 7 starts with but. सो इसीलिए जो 7वीं आयत है वो परंतु शब्द के साथ शुरू होती है। It's unbelievable that all that light can be in our body. और ये अविश्वसनीय है कि वो ज्योति जो है वो हमारे अंदर हो। For we are mere earth. क्योंकि हम लोग तो नाशवान मिट्टी हैं। And so this word earth comes from the Greek word ostrakinos. And it means, yeah, go ahead. Yeah. So ये जो मिट्टी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये ग्रीक भाषा के अस्ट्रकीनो शब्द से आता है। And that word means clay with the added suggestion of frailty. सो ये जो शब्द है, ये मिट्टी शब्द है जो ग्रीक भाषा से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मिट्टी जो है कुछ ऐसी चीजों के साथ मिली हुई होती है जो अक्सर हार जाती है। Therefore, you cannot do the work of God in your power. सो इसलिए क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम परमेश्वर के कार्य को अपनी ही ताकत से या अपनी ही सामर्थ्य से कर सकें। If you try to be the answer, you will fail. यदि हम अपने आप को एक उत्तर लेके करना चाहते हैं या अपने आप को एक उत्तर बताकर चलना चाहते हैं तो हम हार जाएंगे। Because we are flesh. There's nothing good about our flesh. क्योंकि हम तो सिर्फ एक मांस के समान है और इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं है। Remember the psalmist said in Psalms 51 and 5. हमेशा याद रखें कि जो भजन करता है, भजन संहिता 51 उसके 5 आयत में कहता है, Behold, I was shaped in iniquity, and in sin did my mother conceive me. सो उसमें लिखा है कि मैंने पाप में जन्म लिया और मेरी माता ने भी मुझे पाप में ही जन्म दिया है। In our humanity, we will go wrong.
और हमारे इस मनुष्यत्व में हम लोग सिर्फ श्राप को ही लेकर आते हैं। When the Bible speaks of earthen clay, you must get a picture of what clay is like. तो जब बाइबल हमें मिट्टी के बारे में बता रही है तो हमें इस बात के बारे में विचार करना है कि मिट्टी किस प्रकार से होती है। Earthen vessels were heat resistant and used for cooking. जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ये ताप को सहने वाले होते हैं और इनके द्वारा खाना पकाया जाता है। Therefore, pastors, you are earthen vessels. So इसीलिए पासवान आप लोग मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। You ought to be able to take the heat of the gospel. तो आपको इस प्रकार बनना है कि आप उस ताप को, आप उस गर्मी को सह सकें जो सुसमाचार के द्वारा दी जाती है। So when you are called names, और जब हम नाम से पुकारे जाते हैं, when you are persecuted for righteousness' sake, और जब हम धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, you ought to be able to take the heat. तो उस समय हमें उस गर्मी को, उस ताप को सहना बहुत जरूरी है। Take the heat and hold the water. और उस गर्मी को सहते रहें और पानी को अपने अंदर बनाए रखें। The water of the living water, Jesus Christ. और पानी को, बल्कि उस जीवित पानी को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। Just like Jesus gave water to the woman at the well. जैसे कि प्रभु यीशु ने उस सामरी औरत को कुएं के पास पानी को दिया। You must give the same water to every soul in need. तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप हर एक उस आत्मा को जो जरूरत में है उसको वो जीवित पानी दें। Hold the water. उस पानी को पकड़े रहें। Take the heat. और उस गर्मी को सहते रहें, उस ताप को सहते रहें। Because you need to feed others. क्योंकि आप दूसरों को खिलाने वाले हैं। That's why you read the word of God. इसी कारण हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। You study the word of God. हम इसके बारे में जांच खोज करते हैं। You meditate on the word of God. और हम इसके ऊपर दिन रात जो है मनन करते हैं। Because you are delivering life to others. क्योंकि हम लोग दूसरे लोगों तक जीवन को पहुंचाते हैं। As frail or weak as earthen pots are, और जैसे कि मिट्टी के समान हमें कुछ अच्छा नहीं है, God still trusted these vessels with his word. परमेश्वर आज भी इन मिट्टी के पात्रों पर, मिट्टी के बर्तनों पर विश्वास रखते हैं। Number 2, excellence. दूसरी बात जो है वो है एक्सीलेंस, सिद्धता। So let's look at verse 7 again. आइए 7 आयत को फिर से पढ़ेंगे। But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। The reason you will succeed is because the power is not from you, it is from God. हम अक्सर सफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो सामर्थ्य है वो हमारी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर ही की तरफ से है। God's excellence will keep a frail piece of pottery. तो परमेश्वर की जो असीम सामर्थ्य है, जो असीमता है, वो इन मिट्टी के पात्रों को जो हारने वाले हैं उनको इस्तेमाल करती है। God's excellence will keep a faulty pot.
परमेश्वर की असीमता इन गड़बड़ किए हुए मिट्टी के पात्रों को संभाल कर रखती है। God's excellence will keep you and me. परमेश्वर की असीमता मुझे और आपको पकड़े रखती है। Now let's look at the word excellence. तो आइए हम इस असीम शब्द के बारे में देखेंगे। It comes from the Greek word hyperbole. और ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा के हाइपरबोले शब्द से आता है। And the picture you get from this word, and the picture you get from this word, और यदि हम इस जो तस्वीर हम इस शब्द से पाते हैं, is that wherever you are, और इसका मतलब है हम लोग जहां कहीं पे भी हैं, God throws you beyond where you are. परमेश्वर आपको उससे भी कहीं आगे रखता है जहां आप हैं। God has the power परमेश्वर के पास सामर्थ्य है to put his supernatural तो उसकी अद्भुत, उसकी दिव्यता का दिखाने के लिए on you and me, हमारे और आपके ऊपर दिखाने के लिए, so that we operate ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, in an excellence उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकें, that goes beyond who we are. जो बताता है कि ये उससे कहीं बढ़कर है जो हम हैं। And so God throws you beyond your value. परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से, परमेश्वर हमारी कीमत से कहीं बढ़कर हमें रखते हैं। All because the excellence in you is from him. ये इसलिए है क्योंकि वो बहुतायत की अच्छाई जो हम में है वो हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की ही तरफ से है। So I can't brag about me. तो इसलिए मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकता। I cannot lift me up. मैं अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकता। Because it is the excellency of God in me क्योंकि ये परमेश्वर ही की सिद्धता है जो मुझ में है, that causes me to be able to deliver his word. जो मुझे इस योग्य बनाती है कि मैं परमेश्वर के वचनों को आगे बांट सकूं। Now that we realize how weak we are, अब जब हम जान चुके हैं कि हम लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं, let me read verses 8 and 9. तो आइए हम 8 और 9 आयत को पढ़ते हैं। We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। The reason that trouble cannot trap you is because you have the excellency of God within you. इसका कारण क्या है कि हम लोग नाश नहीं किए जाते या नाश नहीं होते, वो यही है कि परेशानियों आने पर भी हम नाश नहीं होते क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य, उसकी सिद्धता हम में बसी रहती है। The reason that you can experience trouble on every side and still do the work of the kingdom is because God is omnipresent. God is on your every side. परमेश्वर हमारी हर साइड में रहता है, हर तरफ से हमारे साथ रहता है। यही कारण है कि कितनी सारी मुश्किलें जो चारों तरफ से आती हैं, उनके होने पर भी हम परमेश्वर का कार्य करना नहीं छोड़ते। The reason that you are not distressed is because you can rest assured that God has you on his mind. तो कारण यह है कि हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ते चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर हमें अपने दिमाग में रखते हैं।
The reason that you are perplexed or puzzled, but not of the mindset to become depressed, is because God's power is on the inside of you. हम बहुत बार सताए जाते हैं, क्लेश में पड़ते हैं, हमारा दिमाग कई बार चकरा जाता है, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम बने रहते हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हम में वास करती है। You cannot remain depressed. आप फिर से परेशान नहीं रहेंगे। The reason that persecution cannot persecute you is because your chief advocate, the Holy Spirit, has you covered. तो कारण यह है कि चाहे कितना भी सताए जाएं, फिर भी सताव में नहीं आते, क्योंकि हमारा जो महान, जो वकील कह सकते हैं, जो महान हमारा वकील है, वो पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ रहता है। God will never leave you or forsake you. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। Because of number 3, exhibit number 3. तीसरी बात के कारण जो है प्रगटीकरण, प्रदर्शित करना। You are about to be the exhibit for God. हम लोग जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। Verse 10, our final verse, 10. 10 आयत जो कि आखिरी आयत है उसको पढ़ेंगे। Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। And with 1 minute to go, I'm going to paraphrase this. Listen, because Jesus got up, you get up. So जल्दी ही हम इस पूरे मैसेज को, इस संदेश को इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रभु उठाए गए हैं तो हम भी उठाए जाएंगे। The victory is not of you, it's in you. जो विजयी है वो हमारी नहीं है, बल्कि वो हमारे ही अंदर है। The power of the Holy Spirit is in you. जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है वो आपके अंदर है। Resurrection power is in you. मृत्यु से फिर से जी उठने की सामर्थ्य जो है वो हमारे अंदर है। No matter where you go, the power of the Holy Spirit will keep your earthen vessel focused and full of victory. जहां कहीं भी आप जाएं ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो पवित्र आत्मा की विजय की सामर्थ्य है वो आप में बनी रहती है। Pastors, I want you to be encouraged today. मैं आप सभी पासवानों को आज के दिन में उत्साहित करना चाहती हूँ। You can trust God. आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। You can trust what Jesus went through. आप विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह किन बातों में से होकर निकले हैं। And you can trust the Holy Spirit will bring you through. और आप पवित्र आत्मा पर भी विश्वास कर सकते हैं जो आपको इस हालातों में लेकर चल रहा है। Trust what God has given you. It is excellent. आप विश्वास रखें जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है और वो सिद्धता से दिया है। And so, pastors, I ended here by saying, और मैं यहाँ पर एक बात को कहकर समाप्त करना चाहूंगी। what God has placed in you जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है is enough to get his work done. तो वो इसलिए नहीं है कि काम को पूरा किया जा सके। God is more than enough. परमेश्वर उससे भी कहीं बढ़कर है। Be blessed today as you go about your day. Remember, you are walking in victory. The victory is yours through Jesus Christ. और आप जब यहाँ से जाते हैं तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको विजयी बनाया है। विजयी आपकी है। जी, पास्टर राज। God bless you. परमेश्वर आप सबको